Hello. I hope you are all doing well and you are spending fantastic holidays in this pandemic of COVID-19. Still, there are lots of things to do, and always be happy and always stay positive in your life. I'm going to show today, just give me a moment. Okay, I'm going to tell you, sometimes some people cannot join their family in the United Kingdom due to some obstacles. Sometimes people cannot come to the United Kingdom because they may not be able to meet the financial requirement. Sometimes people may not be able to join their family because they cannot meet the English language requirement. And sometimes people cannot come to join their family in the United Kingdom because there are many issues in their relationship with their spouse, either due to their previous divorce, due to two marriages, or due to separation or judicial separation issues. So these are the issues why people cannot come to join their family members in the United Kingdom, and this is very difficult for those people to live without their family member. It's me, Barrister Shazia Anjum. I'm UK immigration specialist. I'm going to help you in this video. How can you come under the primary carer visa in the United Kingdom as being a parent of a British child? But the issue is there is a deadline for this kind of application, because this application is submitted under the European regulations, and UK is going to take Brexit in December 2020. Before 31st of December 2020, you must submit your application under this category if you want to come to join their family as a parent of British children. Either those children are living with you outside the United Kingdom, or British children are living in the United Kingdom and you are applying from outside the United Kingdom. So this is going to be, this video is going to be exactly about the primary carer visa. How can you apply, what documents are needed, what are the obstacles, why people cannot come under the spouse category and they want to apply under the human rights, or they want to apply under the primary carer regulations. So this video will be about primary carer regulations. ये ह्यूमन राइट्स के बारे में वीडियो नहीं है. ह्यूमन राइट्स के बारे में आप मेरा जो यूके इमिग्रेशन का यूट्यूब का चैनल है, वहाँ पर आप दूसरी मेरे ह्यूमन राइट्स की वीडियो देख सकते हैं. उसमें भी थोड़ा हार्ड टेस्ट होता है कि जिसमें आपको ह्यूमन राइट्स की ब्रीचेस को शो करना पड़ता है, जिसमें आपको ऑब्स्टिकल्स को शो करना पड़ता है. तो इसलिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो आपकी एप्लीकेशन को थोड़ा मुश्किल कर देती है, कॉम्प्लिकेटेड कर देती है. लेकिन ये जो प्राइमरी केयर का वीज़ा है, ये उन लोगों के लिए जो इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट, इनकम की रिक्वायरमेंट या फिर रिलेशनशिप की रिक्वायरमेंट को किसी तरह से मीट नहीं कर सकते, लेकिन वो ब्रिटिश चिल्ड्रन के प्राइमरी केयर हैं और यूके में आना चाहते हैं. तो इसके बारे में हम बात करेंगे. लाइव कमेंट, क्वेश्चंस और आपकी जो क्वेरीज हैं वो यहाँ पर बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, और आपके साथ हम शेयर करेंगे जो बाकी की रिक्वायरमेंट्स होंगी. सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें जो लगती है, लोग क्वेश्चन करते हैं कि इसमें क्या ऐसी चीज है जो केस को स्ट्रॉन्ग कर सकती है. उसमें आपका होता है शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके दूसरे स्पाउस के साथ, जो पेरेंट है बच्चों के, या फिर इसमें जो आपकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आप उस हिसाब से एफिडेविट आपका जो लगता है वो इसमें मुश्किल होता है कि उसको कैसे ड्राफ्ट किया जाए. अगर उसमें आपको ड्राफ्ट की जरूरत है, डू लेट मी नो. आई विल हेल्प यू इन ड्राफ्टिंग दोज डॉक्यूमेंट्स सो दैट यू कैन मेक योर एप्लीकेशन स्ट्रॉन्गर. सो आपकी एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग होने के लिए 3 चीजों का जरूरी है. नंबर 1, आपने शो करना है कि आप प्राइमरी केयरर हैं. अब प्राइमरी केयरर कैसे शो आप कर सकते हैं? आप के स्कूल्स के लेटर्स चाहिए, आपके डॉक्टर्स के लेटर्स चाहिए जो आपकी प्राइमरी केयरर को, प्राइमरी केयर को शो कर सके कि आपकी क्या प्राइमरी केयर है.
क्योंकि सम टाइम जैसे मदर है वो अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जाती है, वो डॉक्टर के पास लेकर जाती है, और उनके जो लेटर्स होते हैं उनके लेटर हेड पे वो सफिशिएंट एविडेंस हो सकती है कि उनकी डे टू डे रोजमर्रा के जो जिंदगी के फैसले हैं वो आप कर रहे हैं, और वो आपने सपोर्ट किए हैं डॉक्टर्स के लेटर से, वो आपने सपोर्ट किए हैं स्कूल टीचर के लेटर से, और वो आपने सपोर्ट किए हैं अपने लोकल एमपीज के लेटर से। सो नाज़रीन, अभी देखते हैं हमें किन्होंने ज्वाइन किया है और कौन से हमारे पास लाइव कमेंट्स और क्वेश्चंस हैं। ओके Okay, thank you so much for all of you for watching this show. Mabs Ahmed, thank you so much for joining us. Majid Ali Chaudhry and Chaudhry Nawaz Gill again, Raja Zaman Ashraf. So thank you so much for joining us and welcome to this show. Any comments, any questions you can ask, any comment or any questions you can also share your comments for the other viewers. So let's just talk about the primary carers. So what does that mean and how can you meet the obligations? So सबसे पहले आपकी प्राइमरी केयर में जो आता है वो आपने डॉक्टर से लेटर्स लेने हैं, आपने एजुकेशनल लेटर्स लेने हैं, और उसके अलावा आपने अपने एमपी से लेटर लेने हैं, और उस लेटर्स में जो कंटेंट्स होंगे वो कंटेंट्स आपको मैं ड्राफ्ट करके दे सकती हूँ, आपको वो ड्राफ्ट मिल सकते हैं। अब उसमें लोग ये गलती करते हैं कि आपने किस तरह से बच्चों के आपने जो केस नहीं बनाते उसमें ये नहीं लिखते किस तरह से आप बच्चों को पिक करने जाते हैं, किस तरह से उनके रोजमर्रा की जिंदगी के फैसले करते हैं। सो रोजमर्रा की जिंदगी के फैसलों में उनका ब्रॉटअप और उनके साथ आपका उनके खाने पीने का, कुकिंग करना, ख्याल रखना, और वो एविडेंस के साथ आपको प्रूफ करना होता है। एविडेंस जो है वो किसी भी प्रोफेशनल की चल जाती है, उनके लेटर हेड पैड पे होना चाहिए। स्कूल्स के लेटर्स हैं, मेडिकल्स लेटर्स हैं, एमपीज के, काउंसलर्स के लेटर्स हैं, प्रूविंग के आप बच्चों की मेन केयर है। क्योंकि बहुत सारी ऐसे एप्लीकेशंस, बहुत सारी ऐसी क्वेरीज होती हैं जिसमें लोग ये कहते हैं कि हम बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जाते हैं, बच्चों को लेने जाते हैं, लेकिन वो चीज जज या एंटी क्लियरेंस ऑफिसर तब तक नहीं मानते जब तक आप उनको एविडेंस के साथ प्रूफ नहीं करते। सो एविडेंस के साथ प्रूफ करने के लिए आपको ना सिर्फ ये लेटर्स लगाने होते हैं बल्कि आपको पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्रीमेंट भी लगाना पड़ेगा। अब पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्रीमेंट के अंदर जो आपने कंटेंट्स लिखने हैं उसमें पहले कि आपका बेशक स्पाउस का आपस में आपका कांटेक्ट है या नहीं एज ए स्पाउस, लेकिन एज ए पेरेंट आप बच्चों के लिए जो आपस में कोऑर्डिनेशन करना चाहते हैं वो सब आप पेरेंटल शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में लिखेंगे। अब पहला उसमें आप क्या लिख सकते हैं कि ये बच्चों के मेन केयरर कौन है। फॉर एग्जांपल अगर माँ मेन केयरर है तो बाप उस एग्रीमेंट पे साइन करेगा और उसमें ड्यूटीज लिखी जाएंगी कि मदर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सच एज कुकिंग की है, बच्चों के क्लोथिंग की है, उनके डिसीजन मेकिंग है, उनके स्कूल को छोड़ने के लिए जाना है, बच्चों को आउटिंग पे लेकर जाना है, बच्चों को डॉक्टर्स के पास लेकर जाना है। ये वो चीजें हैं कि जो मेन केयर में आती है, और ये सब चीजें जब उसमें लिखकर दोनों पेरेंट्स उसमें साइन करेंगे तो ये एक ऐसा अग्रीमेंट बन जाता है बिटवीन मदर एंड फादर जिसमें शो होता है कि मदर और द एप्लीकेंट इज गोइंग टू बी द मेन केयरर, और बच्चे उसके बगैर नहीं रह सकते। बच्चे ब्रिटिश हैं लेकिन उनको बाहर रहना पड़ रहा है क्योंकि उनकी मदर को वीजा नहीं मिल रहा या उनके फादर को वीजा नहीं मिल रहा, और फादर जो है वो मेन केयरर है और वो पाकिस्तान में है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया में है, सऊदी अरेबिया में है। तो इसमें एक ये चीज होती है कि जैसे अगर आप इमिग्रेशन रूल्स के तहत एप्लीकेशन करते हैं तो इमिग्रेशन की बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करना नामुमकिन हो जाता है, और ये उन लोगों के लिए एप्लीकेशन है जो इमिग्रेशन रूल्स के तहत एप्लीकेशन नहीं कर सकते क्योंकि वो कुछ रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर सकते, तो वो प्राइमरी एज ए प्राइमरी केयरर उस वीजे को अप्लाई करते हैं। अब आपसे हम जो शेयर करेंगे यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप, अभी आपसे अगर ये आप देखें कि अदर ऑप्शंस इसमें कौन सी हो सकती हैं, स्पाउस वीजा जैसे है, लेकिन स्पाउस वीजा
नहीं अप्लीकेबल हो सकता सम टाइम, क्योंकि जिस तरह से पहले हमने बात की कि स्पाउस वीजे में हो सकता है कि सेकंड मैरिज हो, और यूके के अंदर सेकंड मैरिज जिसे बाइगैमी कहते हैं वो ऑफेंस होता है। उस वजह से लोग अपने स्पाउस को पाकिस्तान से नहीं बुला सकते, क्योंकि या इंडिया पाकिस्तान से नहीं बुला सकते क्योंकि वो पाकिस्तान के अंदर तो सेकंड मैरिज अलाउड है लेकिन यूके के अंदर अलाउड नहीं है, और वो डरते हैं कि यहाँ पर उनके लिए ये कहीं ऑफेंस ना हो जाए। तो इस सूरत हाल में अगर वो एज ए स्पाउस नहीं आ सकते, चूंकि उनके बच्चे ब्रिटिश हैं और वो उनके साथ पाकिस्तान में एप्लीकेंट के साथ मदर के साथ रह रहे हैं, अगर वो एज ए वाइफ नहीं आ सकती तो एज ए मदर ऑफ ब्रिटिश चिल्ड्रन आ सकती है। दैट्स व्हाई दिस एप्लीकेशन फॉर दोज पीपल, बट मेक श्योर यू अप्लाई बिफोर 31st of December 2020 because after the Brexit this option may not be available for you people. अब सेकेंड उसमें आता है चाइल्ड एक्सेस वीजा। सो दूसरी कैटेगरी इसमें यूजुअली ये होती है कि लोग ये कहते हैं कि चाइल्ड एक्सेस वीजे के लिए एप्लीकेशन करना है, लेकिन अगेन चाइल्ड एक्सेस वीजे के लिए भी बच्चों का यूके में होना जरूरी है और इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट का जरूरी है। अगर कोई इंग्लिश लैंग्वेज नहीं कर सकता और बच्चे जो हैं आउटसाइड द कंट्री रह रहे हैं, माँ के साथ रह रहे हैं, और माँ जो मदर है इज गोइंग टू बी द एप्लीकेंट, देन चाइल्ड एक्सेस वीजा विल नॉट बी सूटेबल और विल नॉट बी सक्सेसफुल फॉर दोज एप्लीकेंट। दैट्स व्हाई दिस प्राइमरी केयर वीजा विल बी एन ऑप्शन फॉर देम। सो ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशन, अगेन लोग कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशन में और प्राइमरी केयर में क्या फर्क है। अब ह्यूमन राइट्स के एप्लीकेशन में आपको ह्यूमन राइट्स ब्रीचेस का शो करना जरूरी होता है, और जब आप ब्रीचेस को एविडेंस के साथ प्रूफ नहीं कर सकते आपके कौन से ह्यूमन राइट्स ब्रीच हो रहे हैं, सच एज आपको एफआईआर की रिपोर्ट लेनी पड़ती है, या अगर आपको जो है दूसरे पुलिस इदारों से प्रोटेक्शन के प्रूफ लेना पड़ता है कि आपके कौन से ह्यूमन राइट्स ब्रीचेस हो रहे हैं, तो अगर आपके पास वो जेन्युइन रिपोर्ट्स नहीं है देन आपका ह्यूमन राइट्स के ग्राउंड्स भी स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, रादर आपको प्राइमरी केयर का वीजा अप्लाई करना चाहिए। सो ये तो थी उस कैटेगरी में। अब नेक्स्ट उसमें जो चीज आती है वो उसमें ये कहा जाता है कि इसमें आपको इस तरह की एप्लीकेशन में आपको करना क्या पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपको जो है आपको अपनी तरफ से जो है वो इनिशियल डॉक्यूमेंट्स बर्थ सर्टिफिकेट है, आपके पासपोर्ट्स की कॉपी है, एप्लीकेंट के पासपोर्ट की कॉपी है, बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी है, आपका मैरिज सर्टिफिकेट है, और ये जो बाकी ड्राफ्ट लेटर जो आपका लॉयर आपके लिए बनाएगा उसको भी आपने साइन करवाना है। तो इनके अलावा आप पे शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर्म लगेगा या सोल पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर्म लगेगा, और आपको मेंटेनेंस के लिए अकोमोडेशन के लिए भी प्रूफ देना है कि अगर आप यूके में आते हैं तो यहाँ पर आके आप कहाँ पर रहेंगे वो एड्रेस भी आपको देना पड़ेगा, और पाकिस्तान से फिनेंशियल सपोर्ट किस तरह से आपके पास कुछ सेविंग है, आप जॉब कर रहे हैं, थर्ड पार्टी सपोर्ट मिल रही है तो लेटर फ्रॉम थर्ड पार्टी भी आपको लगाना पड़ेगा। ये वो चीजें हैं कि जो आपको अपने केस को केस टू केस डिफरेंट होती हैं हर सर्कमस्टांसिस, तो इसलिए हर एक के केस को असेसमेंट के बाद ही सेकंड लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड की जा सकती है। लेकिन इन नटशल ये जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं या जो अभी जिनका मैंने जिक्र किया है वो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। एक और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है प्राइमरी केयर वीजे के सिलसिले में उसमें ये है, हाँ जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि इस एप्लीकेशन के आपके हेल्थ सरचार्जेस के कॉस्ट नहीं होते, और इस एप्लीकेशन के जिस तरह से बाकी की एप्लीकेशन है उसमें आपके 1527 पाउंड चाइल्ड एक्सेस वीजे की अगर फीस है तो इस एप्लीकेशन की आपके कॉस्ट नहीं होते। दूसरा ये है कि कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारी इंक्वायरीज ये आई हैं कि जो ब्रिटिश सिटीजन जो चिल्ड्रन है दे आर लिविंग आउटसाइड द यूके, राइट, वो अपने पेरेंट्स के साथ वहां पर रह रहे हैं, तो लोग ये समझते हैं कि क्या अगर बच्चे बाहर उनके साथ रह रहे हों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बच्चों को और अपनी वाइफ को छोड़ के यूके में आके सेटल होकर सेकेंड मैरिज कर लेते हैं और अपनी बीवी बच्चों को वहां पर छोड़ के आ जाते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में भी ये ऑप्शन उन माओं के लिए भी
हो सकती है जो यहाँ पर एज ए स्पाउस वीजा तो नहीं आ सकती क्योंकि उनके हस्बैंड उनके एप्लीकेशन को सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन वो एज ए प्राइमरी केयरर ऑफ ब्रिटिश चिल्ड्रन आ सकती है। बेशक बच्चे जो है वो आउटसाइड द यूके रह रहे हैं उनके साथ, फिर भी वो इस एप्लीकेशन में क्वालिफाई करते हैं और उनको राइट ऑफ एडमिशन मिलेगा इस सूरत हाल में कि वो बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि बच्चे जो है वो बाहर नहीं रह सकते, राइट, यूके के बाहर नहीं रह सकते। ये प्रूफ आपने करना है कि किस तरह से नहीं रह सकते। उनके क्या एजुकेशनल राइट मजरू हो रहे हैं, उनके मेडिकल राइट्स मजरू हो रहे हैं, उस सूरत हाल के लिए भी आपको असेसमेंट के बाद ही लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे अगर बाहर रहते हैं तो उनको उनकी किस तरह से सेहत इंपैक्ट हो रही है, एजुकेशन इंपैक्ट हो रही है। चूंकि वो ब्रिटिश है तो उनका राइट बनता है कि वो यूके में आए। चूंकि आप उनके प्राइमरी केयरर हैं, आपके बगैर बच्चे अंडर 18 हैं और वो नहीं आ सकते अकेले यूके में, इसलिए आपको राइट ऑफ एडमिशन दिया जाए। सो दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट ग्राउंड फॉर योर एप्लीकेशन टू कम टू यूनाइटेड किंगडम एंड लिव विद योर फैमिली ब्रिटिश चिल्ड्रन सो दैट दे कैन गेट देयर एजुकेशन, दे कैन गेट देयर medical treatment from the United Kingdom. If it does make sense, then just let me know and type yes. If it doesn't make any sense, then you can also contribute with your comments. Okay? मेरी अम्मी भी ये प्रोग्राम देख रही हैं, मुमताज जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, उसके अलावा ये है कि मलिक हुसैन हमारे साथ देख रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी एंड आई होप you've got very useful information from this show. Anything else you want me to cover in my future video, just do let me know, because in these days I'm really focusing on family immigration and also children child access visa as well. So if you need any further information in terms of family immigration, do let me know and then I will create some further video for you. Okay, so next इसमें हमने ये कवर कर लिया कि मेन केयरर हो आप ब्रिटिश सिटीजन के, प्राइमरी केयरर हो बेसिकली, और ये डेडलाइन है 31 दिसंबर 2020, उससे पहले आपको एप्लीकेशन करना है इसका। और ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स ये आपको नजर आ रहा है। पासपोर्ट ऑफ द ब्रिटिश चाइल्ड, proof of finances, proof of accommodation, birth certificate, marriage certificate, and evidence that the applicant is the main carer for the child, letters from school, hospitals and MPs, shared responsibility form or sole parental responsibility form. Even if your partner, your spouse is helping financially, but still main care should come from yourself, because if you are the main primary carer, and if you are the main carer, then you will be primary carer, and if you are primary carer, then you will be able, you will be eligible, qualify under this application. Okay. सो ये इस केस का जो सबसे बेसिकली मेन रिक्वायरमेंट है वो आपके जो अग्रीमेंट्स ड्राफ्ट हैं, जो आपकी प्राइमरी केयर को शो करना है, प्राइमरी केयर को शो करना है, और जो केस लॉ का थ्रेशोल्ड है बेसिकली आपने उसको इस चीज को हाईलाइट करना है। यहाँ पर एक केस लॉ था कि जिसकी उस केस लॉ के रोशनी के तहत इस कैटेगरी को रिकॉग्नाइज किया गया था यूके के अंदर, और इसी तरह से फिर जो रेगुलेशंस हैं वो राइट ऑफ एडमिशन भी देते हैं उन एप्लीकेंट्स को जो क्वालिफाई करते हैं अंडर दैट केस लॉ। सो उस सूरत हाल में if you need any further information, if you want to get any more information in terms of primary carer visa or human rights application, then do let me know. I will assess your case and then I will help you further in your primary carer application before 31st of December 2020. In the meantime, you will see my contact number on the screen. Only serious applicant will be allowed to send text messages and questions. If you need my help, feel free to contact me and do contact in terms of those help. But if you just want to
send any questions without being applicant. This is not fair for the other people who really need lawyers, or need myself in these situations. In the meantime, wish you all the best and take care of yourself, and I will see you soon in my next video.